नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैक्स ICS लखनऊ, आज आपसे बात करूंगा UP PCS 2018 के इंटरव्यू के बारे में। हर सर्विस की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी जॉब या कार्य, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए आप आवेदन कर रहे होते हैं, उस कार्य से जुड़ी योग्यता, अभिवृत्ति व अन्य आवश्यक अभिवृत्तियां और योग्यताएं जो चाहिए वो आपके अंदर हैं कि नहीं हैं, इसका परीक्षण ही साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। So interview is a method and manner, a tool to assess, examine and evaluate whether for any particular job, service, profession, vocation, do you possess that acumenship, skills and other qualities that are required for that particular job. So when you are applying in the armed forces, the requirements are different. Likewise in management, human resources or financial management or personnel management, the requirements are different. The aptitude, the attitude is different. And so in civil services, when you apply and reach up to the interview level, Commission tries to assess and examine whether you possess those necessary, essential equipments, acumenship and other administrative skills that are required. तो आपके अंदर वो शारीरिक, मानसिक अभिवृत्ति, योग्यता, क्षमता एक सिविल सेवा के अधिकारी के रूप में है कि नहीं, आयोग के द्वारा इसका परीक्षण, इसका मूल्यांकन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। Therefore, interview is not a question answer session. It is an assessment of your personality. It is an evaluation of your thought process. It is the examination of your decision making, communication skills. It is an assessment of leadership qualities that you have. तो साक्षात्कार कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, जिसके द्वारा आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपके अंदर नेतृत्व के गुण, निर्णय लेने की क्षमता, साथियों के साथ एक टीम स्पिरिट की तरह काम करना, एक सिविल सेवा के अधिकारी के रूप में सबको साथ लेकर समायोजन की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है। And therefore your interview cannot be prepared in a day, week or a month's program. There is nothing that we can inculcate in you, or with few classes we cannot shape your thought process, your personality, your mental makeup. We cannot change you overnight. Right from day one you have started learning in the early stages of your life, throughout your schoolings, educational institutions that you have joined, colleges and universities you have attended, various teachers, friends, fraternity, people you have met, good and bad experiences that you have come across in your life. All these things have made up you what you are today. All these things have made up your mental makeup, your psychological makeup. So your socialization, your educational background,
your family circumstances, your exposure, all these have played a very important role in your making of personality. And all this cannot be vanished, changed, or improvised in 1 week or a month's classes. So what we try to do in the mock interview session and the related classes, we try to give you insight, the input, so that you may learn, you may acquire, and you may unlearn those things which may create distortions and distractions in your final selection. So our effort, attempt and endeavor, our entire enterprise is to remove all those last moment hurdles and obstacles that may create problem in your final selection in the civil services examination. तो आपको ये समझना होगा कि हम जो मॉक इंटरव्यू से जुड़े हुए साक्षात्कार का कार्यक्रम या कक्षाएं करते हैं, इसमें हम आपको एक दिन या एक सप्ताह या एक महीना या कुछ दिनों में कुछ ऐसा बता दें कि आपका व्यक्तित्व बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपके विचार, आपके मनोविज्ञान में, आपके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन से आपने जन्म लिया, आपकी परिवार की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान जहां आपने पढ़ाई लिखाई की, आपके यार दोस्त, आपके संगी साथी, आपका समाजीकरण, आपके जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव, जो कुछ भी आपने सीखा, देखा, समझा, जाना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, और धीरे धीरे इन सब घटनाओं, प्रक्रमों, उपक्रमों और आपके इन्हीं अनुभवों ने आपके सोचने समझने, आपके व्यक्तित्व, आपके मानसिकता और आपके मनोविज्ञान का शनह शनह निर्माण किया। तो आज आप जो हैं, जो आपकी सोच है एक व्यक्ति के रूप में, वो दरअसल इतने वर्षों के आपके दीर्घकालिक अनुभव, समाजीकरण, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उन सब का सम्मिश्रित प्रभाव और परिणाम है। और इसलिए कुछ एक आध दिन, एक आध दो हफ्तों की कक्षाओं में आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण कर दिया जाए, आपकी सोच को, आपके विचार को, आपके मनोविज्ञान को कायांतरित कर दिया जाए, आमूल चूल परिवर्तन आपके स्वभाव में हो जाए, ये संभव नहीं है। और इसलिए हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम में ये प्रयास होता है कि हम आपके सिविल सेवा के इस दीर्घकालिक प्रक्रिया में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में, जब आप अंतिम पगबाधा के स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो ये पड़ाव उन समस्याओं से आपको मुक्त कर दे, उन अवरोधों से आपको बचा ले, जिनसे आप अंतिम रूप से सिविल सेवा में चयन पाने में सफल हो जाएं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम और आप अपने साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में उन विषय और बिंदुओं पर विचार विमर्श करें जो हमें आयोग के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते समय अद्यतन रखना है, तैयार करना है। तो आयोग के समक्ष आपकी प्रस्तुति, आपकी देह भाषा, आपके भाषण, व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रस्तुति, आपके उठने बैठने, बोलने, बातचीत करने,
इसका तौर तरीका और समसामयिक विषयों पर आपकी पकड़ और आपकी समझ, कितना आप वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों से अपने आप के सरोकारों को जोड़कर देख पा रहे हैं। ये तैयारी, ये मार्गदर्शन, इससे जुड़े दिशा निर्देश, ये हमारा काम है। So we try to give you those inputs so that you may better your performance and presentation, so that you may rectify if there are few anomalies or corrections to be made in your communication, presentation, and to update and abreast yourself with latest knowledge, information, current affairs, day-to-day events that are taking place in our country and around us, how you are able to correlate with those developments, and how do you represent, reproduce, and how you have understood those things. Here we give you the insight. मिसाल के तौर पर आप जब इंटरव्यू में बोर्ड के सामने जाएंगे तो इस समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, सवाल पूछे जाएंगे। इट्स क्वाइट नेचुरल एंड ऑब्वियस यू मे गेट क्वेश्चंस ऑन देम, जैसे कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, बॉर्डर डिस्प्यूट। इस समय हमारे सीमाओं पर तनाव है और वो तनाव पहले केवल पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहता था, लेकिन पिछले दिनों में चीन के साथ जिस तरीके से ख़तरनाक गतिरोध के स्तर तक पहुंच गया, हमारे कई सेना के जवान और अफसर शहीद हुए। नेपाल के साथ हमारे बरसों बरस के पुराने अंतरंग, मैत्रीपूर्ण, ऐतिहासिक संबंध, उनमें भी तनाव आ गया। तो भारत और सीमा विवाद, विशेषकर चीन, पाकिस्तान और नेपाल के संदर्भ में, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम लोग को चर्चा करना है, हम लोग को समझना है उसका इतिहास क्या रहा, उसका वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। So we have seen that how border dispute have erupted in the last few months. Earlier we had regular border conflicts and cross-border terrorism and other related dispute only with Pakistan, but in the last few months we have seen that how India-China border dispute have flared up. Our ancient, long-lasting, historical, friendly relations with Nepal have also come to the grips of the tension. So overall, border dispute with our neighboring countries, it becomes naturally very obvious to discuss and brainstorm this issue in our discussion. इसी तरीके से कोरोना की वैश्विक महामारी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, तकनीक, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, हमारे आपके जीवन के हर पहलू को बहुत गहरे और दूरगामी प्रभाव से अपने चपेट में, अपने जकड़ में लिया है, तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और होंगे, अन्य महामारियों की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। पहले से ही हमारे देश में बहुत सारी महामारियां मौजूद हैं, उनके विषय में कोरोना जैसा भय या उसका इतना प्रभाव, परिणाम क्यों नहीं हुआ। जो महामारी अधिनियम देश में एकमात्र कानून है जिसके तहत
इसके रोकथाम के विषय में प्रशासनिक मशीनरी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वो कौन सा कानून है, इसके बारे में भी जानना चाहिए इस बार के पीसीएस के इंटरव्यू में और आईएएस के भी इंटरव्यू में भी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एपिडेमिक एक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, be it society, economy, polity, technology, health, education, business, commerce, everything. And why there is so much of pandemonium, halla-buloo, or fear psychosis or fear factor about other diseases which are already existing in India, no less than an endemic or a pandemic. उसके अलावा हमने देखा कि इस बीच सरकार ने बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जारी की, जैसे आत्मनिर्भर भारत, फसल बीमा योजना, एमएसएमई को बेल आउट पैकेज, रोजगार कार्यक्रम, प्रवासी आयोग। तो उन सारी महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में, उनके प्रभाव और परिणाम के बारे में भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पहले से ही संदेश देना चाहता हूं कि जब आप यूपीपीसीएस या आईएएस के इंटरव्यू की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इन एरियाज़ पर अपने नोट्स बना लें, अपनी समझ को बेहतर कर लें। So these are the intricate issues that you learn to understand and its finesse. Make yourself aware with these issues so that you can give more reasonable answer related to such questions. इसी तरीके से हम बात करें तो अभी भी एनआरसी, सीएए, एनपीआर, इनसे जुड़े मुद्दे ख़त्म नहीं हुए हैं। ये दब ज़रूर गए हैं, लेकिन ये फिर कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो हमें उसको भी बेहतर तरीके से जानने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। हाल ही के दिनों में बहुत सारे चक्रवात आए, अम्फन, निसर्ग। सो दीज साइक्लोन्स दे हैव ravaged different parts of India, Amphan and Nisarg, especially to mention about. So the frequent recurrence of such cyclones and natural calamities, अभी हमने देखा कल यानी 25 जून 2020 को यूपी और बिहार में लगभग 100 से ज़्यादा मौतें केवल आसमानी बिजली गिरने से हो गई। क्या कयामत की बात है। आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज़्यादा मौतें हो गई। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आसमान में तो बिजली चमकेगी, उसको गिरने से हम नहीं रोक सकते। तो हम अपने यहाँ उससे होने वाले धन जन हानि को कैसे कम कर सकते हैं? How we can reduce such huge losses of life and property in natural calamities and other man-made calamities? एनडीआरएफ का क्या रोल है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और रिलीफ फोर्स। तो जो ये हमारा राष्ट्रीय आपदा मोचक बल है, ये किस प्रकार काम करता है ऐसी आपदाओं में, कैसे हमारे और आपके जीवन में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए प्रयासरत रहता है, राहत, बचाव, पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रम लागू करता है। सो इट इम्प्लीमेंट्स रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस। इकोनॉमिक रिसेशन की स्थिति आ चुकी है देश में, पूरे विश्व में। यूरोपीय यूनियन से लेकर के अमेरिका और हिंदुस्तान सहित सारी दुनिया में आर्थिक मंदी धीरे धीरे अपने
पांव पसार रही है, अपना कदम बढ़ा रही है, तो रिसेशन, मेल्ट डाउन, स्लो डाउन, इनमें क्या फ़र्क है या कोई फ़र्क है भी कि नहीं है? तो ये तमाम बातें हैं जो कि आपको तैयार करनी चाहिए और हमको आपको मिलकर के इन्हीं इश्यूज़ पर डिस्कशन करना है अपने क्लासेस में। और इसलिए आपके क्लासेस का स्केड्यूल हमने बना दिया है, आपके पैनलिस्ट कौन होंगे और आपका क्लास टाइम क्या होगा और कौन कौन से इश्यूज़ होंगे जिन पर हम लोग पहले बात करेंगे। आपके इंटरव्यू का टाइम 1 जुलाई से शाम को 5 से 7, इवनिंग 5 to 7 PM। इस पर हम लोग डिबेट एंड डिस्कशन, जनरल इंटरेक्शन, पर डे किसी न किसी टॉपिक और इश्यू पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम लोग सैटरडे और संडे यानी 11-12 जुलाई को सुबह 10:30 से शाम 4:30-5 बजे तक मॉक इंटरव्यू करेंगे। आपका ये सारा जो मॉक इंटरव्यू होगा, जो क्लासेस होंगी, इसका वीडियो हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड के तौर पर रखेंगे और उसको अवेलेबल कराएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा रहा, बोर्ड के सामने आपने आपको कैसे प्रेजेंट किया, उसके इवैल्यूएशन के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर हम आपको आपके वीडियो दिखा करके बताएंगे कैसे आप एंटर किए, कैसे आपने नमस्कार किया, अभिवादन किया, कैसे आप बैठे, कैसे आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है। सो वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड वेयर यू हैव डन वेल। सो आवर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, आर faculty members and team members will guide you and try to improvise your overall presentation. So with this, I wish you best of luck, all my good wishes and blessings to you. Thanks to all of you. So we meet on 1st July 2020 for the introduction and inaugural session of our mock interview classes. Thank you. Dhanyavad.